Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we have completed chapter 6 Adolescence, a stage of growth and change. Explanation already has been done in the previous video. Today we are going to start with its summary and question answers, that is the back exercise of this chapter. This chapter, Adolescence, a stage of growth and change, is chapter number 6 from our Science NCERT Curiosity book of Standard 7. And I have already explained you what is the meaning of adolescence. Adolescence is the period of change from childhood to adulthood, and it begins around the age of 10 years and usually lasts until 19 years. So let's begin with the summary and the question answers of this chapter. In a nutshell, this is the summary. Adolescence is the period of change from childhood to adulthood. So I have already explained you this, that adolescence is that period or that time when which start from childhood and it goes on till adulthood. Childhood से लेके adulthood तक. It generally begins around the age of ये 10 years से start होके 19 years तक जाता है. ठीक है? Then adolescence is marked by significant and characteristic physical, biological and इमोशनल चेंजेस. तो adolescence जब होता है उस टाइम पर आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं. फिजिकली चेंज आते हैं, बायोलॉजिकल चेंज आते हैं एंड देन इमोशनल चेंज भी आते हैं. देन फीचर्स दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल but are not directly involved in reproduction are called secondary sexual characteristics. ठीक है, ऐसे फीचर्स या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें एक मेल को फीमेल से अलग डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंस पता लगाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के नहीं होते उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. Puberty is the stage in which the body of a child undergoes observable and internal changes to develop into an adult capable of reproduction. Puberty कब होती है? Puberty तब होती है, ऐसा स्टेज जब हमारी बॉडी जो है वो, किसी भी चाइल्ड की जो बॉडी है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, और वो बॉडी जो है वो इस तरह से डेवलप हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है कि वो एक अडल्ट बन जाता है केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्ट ले सकता है. Adolescence in girls is also marked by start of the menstrual cycle, during which there is a discharge of blood generally after every 28 to 30 days, a process called menstruation. So adolescence girls में जब start होती है उस टाइम पे, इस एज में 10 से 19 की एज में ये adolescence में menstrual cycle start हो जाती है, जिसे हम generally periods भी कहते हैं. और ये क्या होता है? Basically it is a discharge of blood from the body, girl's body, discharge of blood, and it occurs after every 28 to 30 days की एक साइकिल होती है जो फिक्स हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं menstruation. Menstruation begins at puberty and generally ends by the age of 45 to 55 years. तो ये puberty पे शुरू हो जाती है. ठीक है, जब हमारे अंदर इंटरनली और एक्सटर्नल चेंज आते हैं उस टाइम पे ये शुरू होती है, और नेचुरली एक एज के बाद 45 टू 55 पर ये एंड हो जाती है. Adolescents face several emotional and behavioral changes. तो जब हम adolescent होते हैं या adolescence के पीरियड में होते हैं उस टाइम पर हम कई इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस भी फेस करते हैं. Eating a balanced and healthy diet, maintaining good personal hygiene and participating in physical activities help adolescent to stay healthy. तो अगर adolescence की एज में जो बच्चे हैं उनको हेल्दी रहना है तो सबसे पहले आपको एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, और अपनी पर्सनल हाइजीन आपको रखनी पड़ेगी, आपकी हाइजीन, आपकी साफ सफाई, और आपको एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा.
Addictive substances such as tobacco, alcohol, and drugs have adverse effects on body and mind. It is wise to say no to these substances and stay away from them. ठीक है, कई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके हम बहुत एडिक्टिव, हमें उनकी आदत सी पड़ जाती है, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल या ड्रग्स। ठीक है, इसके हमारे जो बॉडी पे और माइंड दोनों पे ही एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। इट इज़ वाइज टू से नो। तो जब भी अगर आपको कोई ये ऑफ़र करे, आपके फ्रेंड्स में या आपके पेयर में या आपके कजिन्स या कोई भी, या प्रेशराइज करे, तो आपको इसके लिए हमेशा नो बोलना है और इन चीज़ों से दूर रहना है। Changes that take place in the body during adolescence are primarily controlled by certain chemical produced in the body. हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में, वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ तरह के केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करती है बॉडी, और इन केमिकल्स को बोला जाता है हार्मोन्स। Proper guidance and awareness help adolescents manage physical, emotional and behavior changes effectively. तो प्रॉपर सही तरीके की गाइडेंस और हर तरीके से अवेयर होना, हर चीज़ को जानना अडोलेसेंट को हेल्प करता है कि वो फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस को जो है वो मैनेज कर सके। So these were the points, the summary of this lesson. Now we are going to start with the question answers. Let us enhance our learning. Question number 1. Ramesh, an 11-year-old boy, developed a few pimples on his face. His mother told him that this is because of ongoing biological changes in his body. तो रमेश जो 11 साल का एक बच्चा, एक बॉय, जिसके फेस पे पिंपल्स हो गए, रेडिश पिंपल्स जो इस एज में जनरली हो जाते हैं, तो उसकी मदर ने उसे समझाया कि ये जो तुम्हारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस हैं उसकी वजह से ही हुए हैं। What could be the possible reason for development of these pimple on his face? तो क्लियरली आपको एक इसमें लेसन के अंदर आपको रीज़न दिया हुआ है कि पिंपल्स क्यों हुए एंड व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दीज पिंपल। तो सबसे पहला इसका आंसर है कि पिंपल्स ऑन रमेश फेस कुड बी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी की वजह से ही उसको हार्मोनल चेंजेस हुए और हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके फेस पर पिंपल्स हो गए। द स्किन ऑयल ग्लैंड प्रोड्यूस मोर ऑयल। तो जो स्किन के जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड, वो एक्सेस ऑयल जो है प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस एक्सेस ऑयल कैन क्लॉग द पोर्स लीडिंग टू पिंपल और एक्ने। ठीक है, तो इस एक्सेस ऑयल से ज़्यादा जो ऑयल है ये उन पोर्स को ब्लॉक कर देता है और इस वजह से पिंपल्स और एक्ने हो जाते हैं। अब इससे रिलीफ कैसे पाया जाए? वॉश फेस विद जेंटल soap, or you can say a face wash. Then drink plenty of water, add balanced diet into his life and avoid oily food. Avoid squeezing or picking the pimples as it can worsen the condition. सबसे पहला पॉइंट है कि अपना फेस जो है वो जेंटल सोप से या फेस वॉश से वॉश करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना पानी पी सके उतना पानी पिए। अपनी डाइट में बैलेंस डाइट इंक्लूड करें और ऑयली फूड को अवॉइड करें। और जो पिंपल्स जहाँ हुए हैं उनको दबा दबा कर, कई बच्चे क्या करते हैं, उनको दबा देते हैं, तो दबा कर अगर आप पिंपल को निकालोगे तो वो वहाँ पर निशान छोड़ जाएगा। तो इसलिए आपको उसको स्क्वीज नहीं करना और प्रिक नहीं करना, क्योंकि वो कंडीशन खराब कर सकता है। Question number 2. Which of the following food groups would be a better option for adolescents and why? यहाँ पे 2 फूड ग्रुप दिए। फर्स्ट वाला जो है इसमें सारा ही जंक फूड है, आप देख सकते हो यहाँ पर बर्गर है, यहाँ पर पिज़्ज़ा है, बिस्किट्स हैं, ठीक है, और फ्रेंच फ्राइज है। ये सब जो है ये क्या है, ये जंक फूड है। बट वेयर एज अगर आप सेकंड पिक्चर देखेंगे, इसमें आपको चपाती, दाल, दही और सब्जी, सैलेड, ये सब चीज़ें जो है, पापड़, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो एडोलेसेंट बच्चों के लिए, जो उस एज के बच्चे हैं, उनके लिए कौन सा फूड ग्रुप का ऑप्शन सही है? तो ऑब्वियसली जो हमारा सेकंड वाला फूड ग्रुप है वो ही सही है। ठीक है, सेकंड वन इज करेक्ट। और क्यों, ऐसा क्यों? Food group 2 would be better option for adolescent as it is composed of vegetable, grains, dairy products, etc.
Such foods are rich in essential nutrients like protein, carbohydrate, vitamin and mineral, which are important for growth, development and overall health ड्यूरिंग adolescence. ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, ग्रेन्स भी हैं, पल्सेस भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं. ये सारे न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करेंगे और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 3, अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये देखो यहाँ ये वर्ड्स दिए हुए हैं. इन वर्ड्स को हमने क्या करना है, हमने अनस्क्रैम्बल करके दोबारा से लिखना है कि ये क्या वर्ड है. द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन एडोलेसेंट गर्ल्स विच जनरली अकर्स एवरी 28 to 30 days इज मेंस्ट्रुएशन. फर्स्ट आंसर है मेंस्ट्रुएशन. द होनेस इन द वॉइस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज इज ड्यू टू enlarged voice box. Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and will mark the onset of puberty. We should say no to alcohol and drugs as they are addictive. So you will complete like this. Question number 4. Shalu told her friend adolescence brings only physical changes like growing taller or developing body hair. Is she correct? What would you change in this description of adolescence? तो शालू ने अपनी एक फ्रेंड को ये बोला कि एडोलेसेंस जो है ना सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही लाती है, जैसे कि हाइट बढ़ जाना, ग्रो हो जाना, ठीक है, और बॉडी हेयर्स डेवलप हो जाना. तो क्या वो करेक्ट है? क्या आप इसमें कुछ चेंज करना चाहोगे? शालू इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट. फिजिकली तो चेंज होता ही है, ठीक है, बट इसके अलावा और भी चेंजेस आते हैं बॉडी में. Adolescence is not only about physical changes like growing taller or developing body hair, it also includes the development of reproductive capability as well as emotional and behavioral changes. तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं. वो कौन से चेंजेस हैं? रिप्रोडक्टिव, इमोशनल एंड बिहेवियर चेंज. Question number 5. During a discussion in the class, some of the students raised the following points. What question would you ask them to check the correctness of these points? ठीक है, एक डिस्कशन हुआ क्लास में जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ पॉइंट्स रेज करे. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन पॉइंट्स के लिए, आप इनको करेक्ट करने के लिए क्या पूछोगे? Adolescents do not need to worry about behavior changes. इसके लिए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट बिहेवियर चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर समथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इफ समवन ट्राइज अ हार्मफुल सब्सटेंस वंस दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट. व्हाट मेक्स यू थिंक दैट समवन कैन स्टॉप यूजिंग अ हार्मफुल सब्सटेंस व्हेन एवर दे वांट. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम करेक्टनेस के लिए इन पॉइंट्स के लिए पूछ सकते हैं. Next question. Question number 6. Adolescents sometimes experience mood swings. On some days they feel energetic and happy, while on other days they may feel low. ठीक है, adolescents जो इस एज में adolescents होते हैं उनके मूड जो है वो चेंज होते रहते हैं. स्विंग मतलब चेंज होना. किसी किसी दिन वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर एनर्जी भरी होती है और हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, पर किसी किसी दिन वो बहुत ही लो फील करते हैं. What other behavior changes are associated with this age? इसके अलावा और क्या चेंजेस हैं जो इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ हो सकते हैं? Adolescents undergo several behavior changes including emotions that may change quickly. Emotions उनके बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं. A strong desire for independence and personal decision making. ठीक है, कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि उनको हर चीज़ की इंडिपेंडेंस दी जाए और पर्सनल डिसीजन ले सके वो. प्रेशर टू फिट इन पीयर एंड फॉलो ग्रुप नॉर्म्स, और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ प्रेशर टू फिट इन विद पीयर्स एंड फॉलो ग्रुप नॉर्म्स. देन इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया. तो ये सब बिहेवियर चेंजेस जो है ये एडोलेसेंट में देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. While using a toilet, Pony noticed that used sanitary pads were scattered near the bin.
She got upset and shared her feelings with her friends. They discussed the importance of menstrual hygiene and healthy sanitary habits. What menstrual hygiene and sanitary habits would you suggest to your friends? ठीक है, एक टॉयलेट यूज़ करते हुए मोहिनी ने ये नोटिस किया कि जो सैनिटरी पैड्स है ना वो डस्टबिन के आसपास फैले हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई, अपसेट हो गई और उसने अपनी ये जो फीलिंग है वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करी। उन्होंने इसकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी और हेल्दी सैनिटरी हैबिट्स के बारे में बात करी। आप कौन सी हैबिट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे अपने किसी फ्रेंड को? मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स। द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स वन शुड फॉलो आर: यूज सैनिटरी पैड्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एक तो हमें सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन में। रेगुलरली चेंज द सैनिटरी पैड्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जैसे जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट हो 4 to 5 आवर्स में आपको इसको चेंज करना चाहिए। वॉश जेनिटल एरियाज प्रॉपरली टू मेंटेन क्लेanliness एंड प्रिवेंट कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, इस एरिया को, जेनिटल एरिया को आपको क्लीन करना चाहिए ताकि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं कैच करे। डिस्पोज ऑफ यूज्ड सैनिटरी पैड्स बाय रैपिंग देम इन अ न्यूज़पेपर। जो डिस्पोज आप कर रहे हो, मतलब जो आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हो और जिसे जिसे आप फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो यूज़ करने के बाद, उनको आपको न्यूज़पेपर में रैप कर देना चाहिए बिफोर थ्रोइंग देम इनसाइड अ डस्टबिन। डस्टबिन में फेंकने से पहले उनको रैप करके न्यूज़पेपर में फेंकना चाहिए। वॉश हैंड्स थरोली विद सोप एंड वाटर। हाथों को अच्छे से सोप और वाटर से धोना है बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग सैनिटरी पैड्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। ठीक है, सोप और वाटर से अपने हैंड्स को अच्छे से धोना है सैनिटरी पैड लगाने के वक्त भी और हटाने के वक्त भी, ताकि कोई जर्म्स आपको जो है वो जर्म्स ना फैले। Question number 8. Mary and Manoj were classmates and good friends. On turning 11, Mary developed a little bulge on the front of her. She visited the doctor who gave her medication and asked to take iron-rich diet. Similarly, a bump was developed on the front of Manoj's neck when he turned 12. However, the doctor told him that it was part of growing up. According to you, what could be the possible reason for advising Mary and Manoj differently? तो मैरी एंड मनोज एक क्या है, क्लासमेट्स हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैरी जब 11 इयर्स की हुई तो उसके नेक के पास एक बल्ज, यानी कि थोड़ा सा उचाव या भार की तरफ जो है ना कुछ नज़र आने लगा। तो जब वो डॉक्टर पे गई तो डॉक्टर ने उसको आयरन रिच डाइट लेने के लिए प्रिस्क्राइब किया। ऐसा ही एक बम्प जो है वो मनोज की नेक पे भी आया जब वो 12 इयर्स का हुआ। जब वो डॉक्टर पे गया तो डॉक्टर ने उसे कुछ डाइट के लिए नहीं बोला और सिंपल बोला कि ये एक पार्ट है ग्रोइंग अप का। तो डॉक्टर ने दोनों के ही बम्प था, मैरी के भी मनोज के भी, और दोनों को ही डिफरेंटली एडवाइस क्यों किया? The possible reason for doctor advising Mary and Manoj differently is that Mary's bulge on the neck might be related to a condition called goiter that is caused by deficiency of iodine, causing enlargement of gland that in turn causes a bulge on the neck. Therefore, the doctor recommended an iron-rich diet for Mary. ठीक है, मैरी के लिए क्या हुआ कि जब डॉक्टर के पास वो गई तो मे भी जो बल्ज था ना उसकी नेक पे, वो गोइटर की वजह से था। गोइटर कब होता है? जब आपके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो ग्लैंड जो है ना वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दैट इन टर्न कॉजेज अ बल्ज ऑन द नेक। तो इस वजह से डॉक्टर ने मैरी को आयरन रिच डाइट लेने के लिए बोला। On the other hand, Manoj's bulge was due to growth of his voice box here as he entered puberty, which causes a bump in the throat and can lead to a hoarse voice as the voice box grows and changes shape. ठीक है, तो और जो मनोज का जो बल्ज था ना वो क्यों था? क्योंकि एक तो वो प्यूबर्टी में एंटर कर गया, ठीक है, एडोलेसेंस एज उसकी थी, और वॉइस बॉक्स जो है वो ग्रो कर गया, जिसकी वजह से उसकी थ्रोट में बम्प सी नज़र आने लगी और उसकी आवाज़ भी जो है वो हॉर्स हो गई, यानी कि हार्ड हो गई, होर्स हो गई। ठीक है, एंड वॉइस बॉक्स जो है वो ग्रो हो गया और उसने शेप चेंज कर ली, इस वजह से वो बल्ज नज़र आ रहा था। तो दोनों के ही अलग रीज़न थे। मैरी को जो है वो गोइटर डिजीज़ प्रॉब्लम थी और
मनोज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मनोज का वॉइस बॉक्स जो है वो ग्रो कर गया था एज ही एंटर्ड प्यूबर्टी। Question number 9. During adolescence, the boys and girls undergo certain physical changes, a few of which are given below. तो adolescence की एज में बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जो हमें नीचे दिए हैं। हमें इन्हें कैटेगराइज करना है, चेंजेस जो बॉयज़ में होते हैं, चेंजेस जो गर्ल्स में होते हैं, और ऐसे चेंजेस जो कॉमन होते हैं। ठीक है, दोनों में होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। सबसे पहला क्या है यहाँ, चेंज इन वॉइस। देखो चेंज इन वॉइस कहाँ आएगा, बॉयज़ में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गर्ल्स ग्रोथ ऑफ मुस्टैच मतलब मूंछ, बॉयज ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, बॉयज पिंपल ऑन द फेस, दोनों के हो सकते हैं, तो ये कॉमन है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन, कॉमन, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की होगी ये। ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होगी कॉमन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे टेबल को फिल करना है। Question number 10, and this is the last question. Prepare a poster mentioning the tips for adolescents to live a healthy lifestyle. आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपने कुछ टिप्स लिखने हैं अडोलेसेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोस्टर मैंने बनाया है, टिप्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। देखो, अवॉइड जंक फूड, तो इस तरह से आप भी पोस्टर बना सकते हैं। अवॉइड जंक फूड, ईट हेल्दी फूड, sleep early and wake up early, medical examination, practice meditation daily, then regular exercise। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। He who has health has more and he who has hope has everything। ठीक है, सो इस तरीके से आप एक पोस्टर बना सकते हैं, टिप्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर एडोलेसेंट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। So with this, I would like to end my video. I hope you have understood all the question answers. Please, if you have not seen the explanation part of this lesson, please go through the explanation part and then the summary and question answers. I'll come up with the next video now with the important points and extra important questions for you. Up till then, take good care of yourself. Goodbye.